Sonakshi Hansen, tell me, whom do you wanted to see again to win for Prime Minister? My vote is for Modi as well because I've seen the development. Because during the Congress there wasn't that much development because the policies are also coming up, and the G20 policy, which is the which is the recent one, it is helping us for a lot. Like for the youngsters also, it is coming up a lot of employment and job opportunities. So that's the very good positive factor. So I'm just hoping for the Modi to win again because the development which are having is India. Because like if you compare towards the international countries with them, so India is coming up to the level as well. So before that India was a underdeveloped country, but now the development is coming up. So it's a possibility that India will be standing up against USA and China and Japan. So my vote is for Modi only. Okay, so what do you wanted to comment about the statement of Congress saying nothing done for the country? No, that's not the possibility that Congress hasn't done anything because during the Congress tenure as well, they did a lot of work. But the Congress is saying that Modi ji has done nothing for the country. For the development, Modi ji has nothing. No, that's not the true because we have already seen the youngsters and everyone. We have seen that the policies are coming up, and in terms of us public health as well, because the health policies and everything is also coming up to the level. And during the COVID tenure as well, because the COVID. That was a very big lockdown period, and how the level up came up to What do that. you wanted to comment about Modi, how he has handled the situation of COVID? He has he's controlled the situation very well because the things we do have been done very down as well. So the lockdown would have been like 2 to 3 years anymore as well. So the vaccination period was very well, and India did a very good job. So Modi done a good job. Okay, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू. देखिए, ये थे दिल्ली की जनता और कह रही है कि लगातार मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री की कमान संभालनी चाहिए. देखने वाली बात होगी. चलिए और भी एक दो लोगों से बात कर लेते हैं. आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? शुभम वामन महाराष्ट्र से हैं। शुभम जी, महाराष्ट्र की पहले स्थिति बताइए, क्या हाल चाल है, और ये भी बताइए कि 24 में किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को खुश कर? 24 में तो मोदी जी है, दूसरा तो कोई है नहीं कैंडिडेट उनके अब। क्यों मोदी जी हैं, क्यों दूसरा कोई नहीं है? उन्होंने जो काम किया है 2014 से हाँ, वो सही लग रहा है थोड़ा। सही लग रहा है. हाँ। अच्छा, ये लगता है कि 24 में एक बार बनेंगे तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा भारत के लोगों को, जनता को. कितनी उम्मीदें? ज़रूर फ़ायदा तो होगा ही। अब तक उन्होंने जो किया है देश हित में ही किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये उम्मीद है कि वो आने के बाद में जो बाकी देशों के साथ में जो इंडिया का जो ये बना है, कनेक्शन जो बना है, वो बहुत बढ़िया कनेक्शन रहा है हुआ है। ये बताइए- अभी रिसेंटली टर्की का जो हो रखा है, उसमें भी जो वहाँ पे हेल्प करी है इंडिया ने, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। अच्छा. क्योंकि जो पहले जो हालात थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, एक दूसरे को कर रही थी, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया हेल्प करेगी उनको, फिर भी इंडिया ने उनको हेल्प किया हुआ है। तो रिश्ते अच्छे नहीं होने के बावजूद भी इंडिया ने हाँ, इंडिया हेल्प कर रही है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो देशों के साथ अपना अच्छा नहीं था उनके साथ रिश्ते अच्छे बना के उनको एकजुट करके अपना पावर कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं वर्ल्ड में। अच्छा. तो ये एक फ़ायदा हो रहा है थोड़ा इंडिया को। अच्छा, मतलब युवा ये समझ रहे हैं कि अभी जो भारत की स्थिति बदली है, भारत का जो दृश्य बदला है, वो मोदी जी के आने के बाद से बदला. जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी जी कहीं ना कहीं असफल रहे हैं भारत के विकास में, क्या कहेंगे? अभी देखिए, बात यह है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। वैसे पहले भी बेरोजगारी थी, पहले कहाँ कम थी, ये आप भी मानते हैं। जिनको काम करना है उनको तो मिलता ही है, अब जिनको करना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप लोग? वो लोग तो हर एक को पकड़ा नहीं सकते जाके वहाँ पे। आप कोशिश करो, मिल जाएगा आपको भी। इतनी सारी वैकेंसी खाली है, डेली आप चेक करते रहेंगे तो अभी जिनको ट्रोली करना है वो तो ट्रोली करते रहेंगे। बात तो वही आती है। अब क्या है, हर किसी की पार्टी है, हर किसी की हर एक प्रॉब्लम है, हर किसी को रहना है चर्चा में, कोई ना कोई मुद्दा लेके वो तो भिड़ना ही है, तो वही है बस, बाकी कुछ है ही नहीं है। और बाकी वैसा कुछ नजर नहीं आता. नहीं नजर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. चलिए और भी लोग मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं. 24 की तैयारी के बीच आम जनता क्या सोच रही है? सर, क्या नाम है, कहाँ से आए? संदीप, संत नगर बुराड़ी। अच्छा, बुराड़ी से आए. संदीप जी, ये बताइए, क्या लगता है 24 की तैयारी तेज हो रही है, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बनना. क्यों मोदी जी को बनने चाहिए, क्या खासियत कि आज एक बार फिर से दीवानगी और बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है? मोदी जी ने देश को मजबूत करा है, एक तो हिंदुओं को मजबूत करा है, और ऊपर से उन्होंने जो डिफेंस को दिया है वो बहुत कुछ दे दिया। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में कुछ भी नहीं था डिफेंस के पास, वो खोखली थी, बिल्कुल खोखली थी. बिल्कुल खोखली थी। अब डिफेंस के पास बहुत कुछ है। अच्छा,
सर ये भी बताइए, अभी कांग्रेस जमकर हमलावर है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर अडानी मामले को लेकर घेर रही है, जम्मू कश्मीर में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस पर भी घेर रही है। क्या लगता है सर, ये मुद्दे को भुनाने की कोशिश है और मुकाबले में राहुल गांधी को कितना ज्यादा सफलता इसमें मिलेगी? राहुल गांधी को तो कुछ नहीं मिलेगा, ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा उसको। और बात रही अडानी की, तो वो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। हमारे कानून में बहुत ताकत है, अगर उन्होंने कुछ करा है तो पकड़ में आएगा ही आएगा, वो बचेगा नहीं, चाहे वो अडानी हो चाहे कोई भी हो। अच्छा ठीक है सर, ये भी बताइए कि अभी आपको मुकाबले में क्या लग रहा है? अभी सदन के अंदर मोदी जी ने जवाब दिया, अर्थव्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर जवाब दिया है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। सदन के अंदर उन्होंने दहाड़ मारी थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। खड़गे जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं जी, वो तो बोलते हैं वो गलत हैं, वो गलत ही रहेंगे। मोदी जी सब पे ही भारी रहेंगे हमेशा ही, वो कभी पीछे रहेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से वापस कमान संभालते हैं तो भारत का विकास अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं आने वाला। अभी तक किसी के पास कोई फेस नहीं है दूसरा, अभी तक मोदी ही है, मोदी ही रहेंगे अभी, बिल्कुल। अच्छा सर, मोदी जी पर भरोसा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब धीरे धीरे करके भरोसा उठता जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में पूरा समर्थन मिला है जनता का, और कहा जा रहा है कि इस बार मोदी जी को नापसंद किया जा रहा है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा नहीं, मोदी के अलावा और कोई फेस है ही नहीं किसी भी पार्टी के पास, मोदी ही है, मोदी ही रहेंगे अभी, बिल्कुल कहीं नहीं जाते वो अभी, कोई डाउट ही नहीं है, लिख के देते हम। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए और भी लोग मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। हाँ। संजय जी, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना? बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा, प्रधानमंत्री तो मोदी जी, क्यों? क्योंकि देखो सिक्योर है, एक तो मोदी जी सिक्योर है, और मोदी जी के सब सुनते हैं, और कोई कोई आपको चेहरा नहीं है, विपक्ष में कोई चेहरा है कोई नहीं है। हम तो देखिए यहाँ पर हम बहुत दिनों बाद आए, इतना डेवलप हुआ है यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल हमें लगा। हम पूरे अपने मदर को लेके आए, सबको लेके आए। अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? कितना ज्यादा बदला है? क्लीन, एकदम क्लीन हुआ है यहाँ पर, और बिल्कुल ब्यूटीफुल, साफ सुथरा, बिल्कुल पहले से बहुत बेटर है। लेकिन पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी पार्क नहीं हुई यहाँ पर। अच्छा, ये भी बताइए साथ में कि ये विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है सदन के अंदर कि केंद्र सरकार, मतलब भाजपा की सरकार अभी काम नहीं कर पाई है, राहुल गांधी ने घेरा है अडानी मामले पर, क्या लगता है क्या कोशिश की जा रही है? देखिए कुछ ना कुछ तो है, जो 609 पे था जिसका सीक्वेंस 2 पे कैसे पहुंच गया, ये तो देखो इंक्वायरी बनती है। मोदी तो चल रही है। ये जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपी सिंह बनवा दें तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, लेकिन क्या लगता है सर, मुकाबले में प्रधानमंत्री के लिए और कौन हो सकता है आगे? कोई नहीं है, कोई नेवर, मुझे तो कोई दिखता नहीं है इसके अंदर, लिस्ट में कोई नहीं दिखता। अच्छा, मोदी जी ने काम किया है लगता है? बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं मोदी जी जैसा। तो मैं कह रहा हूँ मोदी जैसे कंट्रोल है ना, पूरा सब कंट्रोल है नेताओं पे, वैसे ही कंट्रोल होना चाहिए। और कौन कर रहा है? कंट्रोल है ही नहीं किसी का। अच्छा, ये भी बताइए कि कहा जाता है कि अपने कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद से बेरोजगारी, महंगाई ज्यादा आ गई है, क्या लगता है आम जनता क्या सोच? थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट तो है, देखिए वो तो दिखता है, लोगों को दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यंगस्टर हैं, बहुत फ्री घूम रहे हैं और सब उल्टे सीधे कामों में लगे हुए यंगस्टर, तो वो थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए और भी लोगों से थैंक यू सो मच। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? प्रांजल। प्रांजल जी, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी लाइक नरेंद्र मोदी। अभी तो वो तो उन्होंने तो बोल ही रखा है कि नहीं, उन्हें तो लास्ट उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था एक्चुअली, बट देखो लेट्स सी कौन बनता है, अभी ये तो पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये बताइए प्रांजल जी, आप एक युवा हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कितना ज़्यादा बदलाव देखते हैं भारत के अंदर उनके आने के बाद, और क्या लगता है अगर वापस से प्रधानमंत्री बनाया जाए तो विकास और बढ़ेगा? हाँ श्योर बढ़ेगा, काफ़ी चेंजेस आए उनके बाद, ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें चेंजेस आए। इवन इससे पहले हमें इंडिया में कोई नहीं इंडिया को इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अदर कंट्रीज़ में, बट अभी इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया, लाइक हमारे हेल्प भी कर रहा है अदर कंट्री को, ठीक है, इंडिया। हाँ, टर्की को भी कर रहा है और अदर कंट्रीज़ को भी, लाइक ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही किया जा रहा होगा। बहुत चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा प्रांजल जी, ये भी बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, भाजपा का बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसके साथ से अडानी पर भी हमला कर रहे हैं। क्या लगता है प्रांजल जी, विपक्ष को एक मुद्दा के तहत मिला है, और क्या ये मजबूरी है कि केंद्र सरकार का विरोध करना है? नहीं, मजबूरी तो नहीं कहेंगे, ये विपक्ष को एक ये मुद्दा के तौर पे मिला है, लाइक उन्हें एक विपक्ष को ये मुद्दा के तौर पे मिला है, ये कोई मजबूरी। हाँ, ये मुद्दा बस यही सेम, हाँ वो सारे मिलके बस ये मुद्दे के तौर पे मिला है, कोई मजबूरी नहीं है इसमें, बस वो मुद्दे के तौर पे मिला है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी लाइक बहुत अच्छा है।
बहुत सही है जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग बहुत सही है, ऐसा कोई नहीं है कि लाइक अच्छा है ओवरऑल या इट्स गुड। चलिए बहुत शुक्रिया। और भी कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए दिल्ली के नौजवानों से जान ले कि 24 में क्या होने वाला है। कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं दीपेश कन्नौज यूपी से आया हूँ। यूपी से आए। ये बताइए दीपेश जी, क्या लगता है 24 में अगला प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहते हैं? मोदी के अलावा अभी तो कोई दिख नहीं रहा है विपक्ष में, कोई ऐसा नेता जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। राहुल गांधी लगे हुए हैं लेकिन अभी फिलहाल कुछ होने वाला है नहीं। गांधी लगे हुए कह रहे हैं अर्थव्यवस्था, गरीबी, महंगाई, इसके साथ साथ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, शक्तिशाली लोगों ने जो प्रभाव डाला उसको हटाने के लिए अब कह रहे हैं ये भाजपा का बुलडोजर है, भाजपा इस बार सक्सेसफुल नहीं होने वाली। क्या लगता है सर? नहीं, जो बुलडोजर चल रहा है वो तो सही चल रहा है हमारे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से लोगों ने कब्जा कर रखा है आपने, तो अब जमीनों पर कब्जा हटाने की कोशिश। कब्जा अगर हटवाया जा रहा है तो ये तो अच्छा है ना, कि ये जो गरीब लोगों का इसमें कहीं अस्पताल बनेंगे, कहीं स्कूल बनेंगे, तो ये अच्छा है ना, तो हटना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अच्छा प्रांजल जी ये भी बताइए, दीपेश जी ये भी बताइए कि क्या लगता है धारा 370 हटने के बाद से जो आप महसूस कर पाते हैं कितनी ज़्यादा कश्मीर की स्थिति बदली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब लोगों को डर नहीं लगता है। देखिए 370 जब से हटा है तब से अब लगता है कि ये कश्मीर, ये अपना भारत का मतलब एक अलग जुड़ाव महसूस होता है। पहले लगता था कि ये अलग ही है, क्योंकि उससे कि वहाँ के पाकिस्तान के आके नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन इंडिया का जाके वहाँ नागरिकता नहीं ले सकता था। अब ये हट के अब यहाँ से जाके वहाँ नागरिकता भी ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी टूरिज्म वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ है जब से 370 से रोजगार के इतना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कि बहुत मतलब युवा को रोजगार भी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बाकी बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। जी अच्छा दीपेश जी ये भी बताइए कि क्या लगता है युवा मुकाबले में किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा देश कांग्रेस के साथ है, नाराजगी है मोदी जी के लिए, इस बार तो कहीं ना कहीं पल रहा भारत। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अच्छा है, उससे तो उनका थोड़ा उनकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी का कोई काट है नहीं यहाँ पे। नहीं, अकाट्य। हाँ बिल्कुल अकाट्य समझ लीजिए। जी बिल्कुल, मुकाबले में कोई नहीं है। मुकाबले में है नहीं इसके अलावा। हाँ जी।